सक्षम जी मीटिंग में है प्रतीक जी? I think so, sir. He'll be joining in a few, if not. Okay. Good morning, everyone. This is Kaswan, Dean Sanskriti University. First, I welcome Prateek Khare. He is the head digital marketing in Edudite Private Limited, and we having our special guest, Mr. Narayanan S. He's a CEO and founder of the co-founder of the Unschool. We having good relationship between Unschool and Sanskriti University, MOU with Unschool. Unschool is digital platform for education for the young dynamic leaders. I welcome Prateek Khare ji. I invite him to welcome the audience and as well as Mr. Narayanan as Prateek Khare ji. Thank you, sir. Good morning, everyone. My name is Prateek, and as Kaswanji said, we are here today for the seminar. I hope you all have a basic idea on why we are here today, right? So we are going to witness a speaker with us today, whose name is Mr. Narayanan. He's a speaker who's traveled the world. He's been involved in the education space and the youth for more than 7 years now. He's been a part of the organization called ISTEC, where he volunteered as national president for the, Nepal as well. And then now why he's here with us today is to introduce Unschool. Unschool, as you might know, a lot of you of course already know, is an organization which provides online certification courses. And we have a tie-up with Unschool and Sanskriti University to help all of you students to upskill yourself. And in this specific era wherein everything is going digital, then these are the kind of internships and these are the kind of certification courses that will really help you to go ahead in your journey and get that edge over your peers. Yeah. So let me not waste any more time and welcome Mr. Narayanan to share his words with you, and then we can take it from there. So Narayanan, I welcome you. Please, thank you the so much, Prateek, and thank you so much, the faculty of Sanskrit University. And again, thank you so much, all the students who are joining us today through this Zoom meeting link, as well as the Facebook live feed. It is an immense pleasure once for me to address students of such a prestigious university. And I think all of us are a little frustrated with how the year 2020 has been for us. Sitting at our homes, we couldn't enjoy time with our friends in college, in the canteen, or in the class with our professors. So, we've sort of got by with 2020, but there's a lot more for us to come in terms of building this nation, in terms of the kind of things that we have to learn. And I'm going to just take 15 to 20 minutes to sort of wrap up the overall space here, and then if anyone has questions, we'll open it up for that. I'm going to start with my story. Yeah. So I'm very young. I'm a very, very young person. So no need to call me sir, because I think I've not yet attained that level of experience, I would say. But yeah, I'm 27, and over the past 6 to 7 years, I have personally sort of experienced learning on the go. Back in college, I took up Bachelor's of Physics. I was raised in Delhi, and through the course of college, I realized that what college teaches me in the classroom is one set of skills,
But when I jump on to, taking my first job or my first internship, you realize that there are a lot many skills that you have to procure before you reach a level of excellence, right? So if in a college you're being taught, interpersonal skills, if you don't apply them through an internship or through a job, that knowledge that college is giving is of no use then if you don't implement that, right? And that's the overall idea of institutional education, that it makes sure you're jumping on and becoming career ready. Yeah. So through the course of the last 6 to 7 years, I have personally, been learning on the go. Even though I took physics, right now my expertise lies in B2B marketing, digital marketing, product and technology, and I've learned all of this through online modules and learning while I was interning with many companies, right? And one of the most important skills I personally learned is that it doesn't matter what degree background you're coming from. If you're a mechanical student, if you're a CSE student, it doesn't matter if you're coming from say a chemistry background. What really matters is where your competency lies and what do you love to do, right? University and school gives us a broad understanding of what we can do in our life, but the choice is always in our own hands, right? So as students, I would recommend you to explore a lot many things while you're in college, because then you have your professors who can guide you. Because after you jump out of college, I mean, I'm not joking about this. In the corporate environment, mentorship and guidance is very limited, right? So while you're in college, explore as many things as you can, right? Now, a lot of you students would have already been exposed to a lot of online learning platforms, and I think one of the most famous ones I would say for Indian students has been YouTube, right? You go on YouTube and type everything. Okay, how do I become a digital marketer? How do I apply for an internship, right? Now, even though YouTube as a platform itself is very humongous, provides us a lot of video-based content, it's very hard for a student to sort of attain curated content, right? There is a reason why platforms are created. There's a reason why universities are created, because knowledge is available, but what sort of knowledge is required by you is something that people work on, right? So these digital platforms, apart from the one that's being used the most, which is YouTube, I think other platforms which are out there, which you probably know, would be Swayam or NPTEL. Your college would have also probably provided you with, Coursera and Udemy. While all these platforms are really good in their own sense, over the past 2 years, Unschool has been in the market, and over the past 3 years, I've spent my time along with my co-founder to build this platform for specifically Indian student needs, right? Now, all these other companies I spoke about, they probably are Western companies. They do not know the day-to-day challenges that an Indian student faces, right? Now, Unschool is an Indian company which provides an online platform, a world-class online platform for you to learn anything from A to Z, which means that if you're a student who wants to learn photography, but you're in a mechanical background and college cannot offer you that particular learning, you come on the Unschool platform and you learn photography, right? And not just photography. Now, if you're looking at, I'm a CSE student, for example, and I want to explore my coding language knowledge to say, Django or maybe Java and Python, right? And that's exactly what Unschool is there for. Regardless of whatever stream you come from, regardless of whatever stream you want to enter, Unschool provides a wide array of courses. Yeah, Unschool provides a wide array of courses, right? Cool. So I'm speaking a lot in English, तो मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? Perfect. ठीक है. तो मैं वैसे दिल्ली में 18 साल रहा था, तो मेरी हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं, थोड़ा पॉलिश करके मैं बोलूँगा, ठीक है? तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि इस जमाने में कॉलेज में जो सिखाते हैं, उसके ऊपर भी हमें, उसके अलावा भी हमें बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहिए. जैसे कि अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हैं, और कोई मैकेनिकल स्टूडेंट है क्या इधर, मैकेनिकल बैकग्राउंड से या फिर केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से?
नारायण, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल हमारे पास नहीं है। Perfect, super, मैकेनिकल right? फाउंड्री प्रोडक्शन ऑल आर देयर। All right, perfect. So ऐसे कोर्सेज जहाँ पे अभी जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है नहीं, राइट? तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कॉलेज से निकलने के बाद बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, राइट? एंड उसका एक प्रॉब्लम है कि हम स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज में रहते हुए ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं करते। जैसे कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है उससे हम करियर रेडी तो हो जाते हैं, बट हमें क्या पसंद है और आगे जाके, मतलब अब कॉलेज 4 साल का है, जॉब जॉब करना तो 15-20 साल, 25 साल, 30 साल, जब तक रिटायरमेंट होगा तब तक जॉब चाहिए, है ना? क्योंकि उसी से अब हमारा इनकम आएगा और उसी से रोजी रोटी चलेगी अपनी। उसके लिए अपने स्किल्स को हमें कॉलेज में रहते हुए ही डेवलप करना है, राइट? और वैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज करते होंगे अभी, जैसे मैंने बोला NPTEL है, स्वयं है। अब इन प्लेटफॉर्म्स में प्रोफेसर्स तो बहुत बढ़िया है, आपके IIM IIT से प्रोफेसर्स आते हैं, बट पर्सनलाइज्ड आपको मेंटरशिप नहीं मिलती, राइट? जैसे कि अगर आप नॉर्थ से हैं और आपके वीडियोस इतने इंग्लिश में हैं और आपको डाउट पूछना है, तो अनस्कूल पे रीजनल लैंग्वेज में भी आपको डाउट क्लियरिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, राइट? और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स में तो डाउट क्लियरिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता कि मेरे को डाउट है सर, मैं कहाँ पे जाके पूछूं, राइट? तो जो हमने अनस्कूल का ये प्लेटफॉर्म बनाया है वो इंडियन मेक कंपनी है। हम 2 साल से कॉलेजेस में हैं, ओवर 800 कॉलेजेस में अभी स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज लेते हैं। और ये कोर्सेज सिर्फ आपके कॉलेज के लर्निंग के हिसाब से ही नहीं बने, बट अगर आपको उसके आगे भी बढ़कर कुछ पढ़ना है, जैसे कि अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मैजिक सीखने की भी अपॉर्चुनिटी है, राइट? अगर आपको मैजिक सीखना है वर्चुअली, वो सीख सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटर बनना है, उसकी भी सुविधा है। अगर आपको कंटेंट राइटिंग पढ़ना है, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ना है, राइट? आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पढ़ना है, राइट? कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया में, तो कम से कम 80% कॉलेज स्टूडेंट्स तो इंजीनियरिंग में रहते हैं ना, पर आगे जाके वो क्या करते हैं उसका जो स्टोरी है वो बहुत ही थोड़ा 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 सैड स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आफ्टर 4 इयर्स पढ़ने के बाद भी कभी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का रोल ले लिया या फिर कोई कोई छोटे रोल्स ले लिए। बट अगर आप कॉलेज में रहते हुए अनस्कूल जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो करियर है वो बहुत ही अच्छा बन सकता है इन द फ्यूचर, राइट? तो मैं आपको अभी क्विकली अनस्कूल के जो मेन यूजेजेस हैं वो आपको बताऊंगा, उसके बाद हमारा संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ क्या पार्टनरशिप है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा, राइट? परफेक्ट। तो जो पहला है कि आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, राइट? तो अभी हम, और ये प्लेटफॉर्म हम एवरी मंथ ऐड करते रहते हैं डिफरेंट कोर्सेज। तो अगर आपको इंग्लिश या फिर आपको जर्मन सीखना है तो लैंग्वेज के लिए भी आप अनस्कूल यूज कर सकते हैं। आपको आर्ट्स या डिजाइन, आपको ग्राफिक डिजाइन सीखना है, आपको इंटीरियर डिजाइन सीखना है, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, राइट? और इस कोर्सेज को कौन बनाता है, राइट? तो इस कोर्सेज को अनस्कूल नहीं बनाता है, इन कोर्सेज को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बनाते हैं, जो कि 3 या 5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जो लोग करियर में काम कर रहे हैं, जो जॉब में हैं, वो ये कोर्सेज बनाते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे, थियोरी का ही नहीं बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहे, राइट? तो वो हुआ कोर्स के कंटेंट के बारे में। अगर आपको डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भी क्लियर होते हैं इमीडिएटली, राइट? अगर आपको किसी इंस्ट्रक्टर के साथ कॉल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे या लाइव क्वेश्चन है आपको, तो आप वीडियो पे भी जूम कॉल पे आके वो क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपने, राइट? और जब आप पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं तो एक कोर्स कम से कम 5 से 6 हफ्ते का होता है, राइट? और इतना महंगा भी नहीं है। मैं कॉस्ट के बारे में बाद में बताऊंगा। हर एक कोर्स आप 5 से 6 हफ्ते के बीच में कर सकते हैं, और इन 5 से 6 हफ्ते के बीच में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कोर्स के अंदर, राइट? अगर आप ग्राफिक डिजाइन का एक कोर्स कर रहे हैं या फिर डेटा साइंस का कोर्स कर रहे हैं या फिर जावा, पाइथन, C++, कोई भी कोर्स कर रहे हो आपको उसमें एक माइनर प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि आप प्रैक्टिकली अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो थियोरी तो है ही है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा आपको, और लाइव सेशंस भी इन्वॉल्व है, राइट? अगर आपको डाउट क्लियर करना है, आप नर्वस हैं, डायरेक्टली आप बात नहीं करना चाहते किसी प्रोफेसर से, किसी इंस्ट्रक्टर से, तो आप डायरेक्टली ना पूछने वजह डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, उसमें भी आप लाइव सेशंस में पूछ सकते हैं। और इस पूरे कोर्स का करने का फायदा क्या हुआ, राइट? क्योंकि
आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके पढ़ सकते हैं। अब अनस्कूल की एक खासियत है कि कोई भी स्टूडेंट एक कोर्स फिनिश करेगा तो वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अप्लाई कर सकता है अनस्कूल के प्लेटफॉर्म पे ही, राइट। और हम कंपनीज के साथ पार्टनर करते हैं जहां पे आपको पेड इंटर्नशिप्स मिलेंगी, राइट। तो अगर आपने कोई भी कोर्स किया हो तो उस कोर्स के लिए ही एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होगी। आप कंपनी के साथ इंटरव्यू में बैठेंगे, वो आपको सेलेक्ट करेंगे और आपको 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक इंटर्नशिप भी मिलेगी ऑनलाइन, और ये पेड इंटर्नशिप्स होगी, राइट। तो यही है पूरे प्लेटफॉर्म का जो यूजेज है। अगर आप अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने करियर पाथ को, आपको पता नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, तो अनस्कूल आपका एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज को, राइट, डिफरेंट करियर पाथ्स को। तो ये है अनस्कूल के अनस्कूल के प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं अभी तो मैं वो क्वेश्चंस लेता हूं, उसके बाद हम संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ क्या पार्टनरशिप है उसके बारे में बात करेंगे। किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है प्लीज आप चैट बॉट में टाइप करिए, या फिर अनम्यूट भी कर सकते, या फिर अपना हाथ रेज करेंगे तो मैं आपको स्पीकिंग राइट्स भी दे सकता हूँ। मेरे ख्याल से भी दो स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया था। यस, तो मैं आपको अभी गौरी शर्मा को स्पीकिंग राइट्स दे रहा हूँ। प्लीज अपने क्वेश्चन पूछिए आप मुझसे अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो गौरी, प्लीज पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप संस्कृति यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हो क्या? नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ अनस्कूल के बारे में, जो कि संस्कृति यूनिवर्सिटी का एक पार्टनर कंपनी है, और हम आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ओके ओके सर, ओके सर, तो ये एक थैंक एड यू। ऑन है। आप अगर आप संस्कृति कॉलेज में अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आप आपको पता करना है कि संस्कृति यूनिवर्सिटी में ही क्यों एडमिशन लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको क्लासेस में ही नहीं पढ़ाती, बट और भी पार्टनरशिप्स के थ्रू आपका जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतर करती है, राइट। तो ये सेशन उसी के बारे में। ओके सर। थैंक यू गौरी। राहुल शर्मा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल। सर ये पूछ रहा था मैं, अपने गोल को कैसे सेट करें हम अपनी लाइफ में। अच्छा, अभी आप किधर से हैं राहुल, ये बताइए पहले तो। क्या सर? आप कहाँ से हैं? सर मैं मथुरा से। मथुरा से। बढ़िया। देखिए राहुल, लाइफ में ना, मतलब एटलीस्ट इंडिया में, और इंडिया में लाइफ में, राइट, बहुत से चैलेंजेस आते हैं कि पहले तो स्कूल में हम पढ़े, फिर पेयर प्रेशर आया, पेरेंट्स का प्रेशर आया, बोला कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग करते करते बहुत से और एक्सपीरियंसेस आए, राइट। तो गोल सेट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को इतने तनख्वाह की ये वाली सैलरी चाहिए इसीलिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, राइट। आपका गोल ऐसे होना चाहिए कि मैं आगे जाके एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकूं, राइट, और उसके लिए मुझे एक अच्छा इंसान कैसे बन सकूं, और उसके लिए मुझे क्या क्या स्किल्स चाहिए, राइट। तो आपका गोल जो होना चाहिए वो एक नंबर के ऊपर नहीं होना चाहिए कि मेरे को इतने मार्क्स लेके आने हैं, राइट। अब उतने मार्क्स तो आ गए, बट उतने मार्क्स का हम करेंगे क्या, राइट। आपका गोल होना चाहिए बहुत ही प्योर गोल होना चाहिए कि मैं आगे जाके कितने लोगों की मदद कर सकता हूं जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसके 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 थ्रू, राइट। तो जब मैं कॉलेज में था, मैं पहले बास्केटबॉल खेलता था, लॉन टेनिस खेलता था। उसके बाद मैं इंटर्नशिप ज्वाइन किया। मेरा पहला जो जॉब था वो मैकडॉनल्ड्स में था, ठीक है। अब मैं दिल्ली से हूँ, और जैसे ही मुझे मैकडॉनल्ड्स में जॉब मिली तो मेरे पेरेंट्स ने बोला, अरे आपको मैकडॉनल्ड्स में काम करने की क्या जरूरत है, राइट। बट उस टाइम पे उनको इतना नॉलेज नहीं था कि कोई भी इंटर्नशिप हो, कोई भी काम हो, उसके थ्रू एक स्टूडेंट बहुत कुछ लर्न करता है, राइट। जैसे कि अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज के इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया, तो उससे आपको कुछ पता लगेगा कि मुझे स्टेज में चढ़कर माइक में बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर मुझे जो ऑर्गेनाइजर बनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो गोल सेट करने से पहले मैं आपको यह एक सजेशन दूंगा
कि आप कॉलेज में रहते हुए बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करें, राइट? अब जो स्टडीज के अलावा प्रोफेसर्स के साथ जो क्वेश्चंस पूछेंगे आप, एजुकेशन के अलावा आप कॉलेज के इवेंट्स में, जैसे कोई डिफरेंट रोल्स होते हैं, राइट, उन रोल्स में भी पार्टिसिपेट करिए, राइट? उसके थ्रू आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, राइट, कि आगे बढ़कर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। उसके बाद आप गोल सेट करिए, राइट? अभी बहुत यंग है, अगर आप 18 से 23 के बीच में हैं तो बहुत बड़े गोल सेट करने की जरूरत नहीं, राइट? आप एक बार एक्सप्लोर करेंगे लाइफ को, उसके बाद जाके गोल सेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट? तो राहुल, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया हो। बहुत से और लोग हैं जिसके क्वेश्चंस हैं, तो मैं सलोनी से अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सलोनी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर माय फॉरेन स्टडीज, बिकॉज सर ये मेरा शुरू से ड्रीम रहा था कि मैं फॉरेन में जाके पढूं। अच्छा, तो सर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सलोनी। देखिए, मैंने पिछले 5 साल में कम से कम 18 से 20 कंट्रीज ट्रैवल किया है, ठीक है? और मतलब बाहर जाके पढ़ने की तो मेरी ख्वाहिश इतनी थी नहीं, क्योंकि इंडिया में ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको वर्ल्ड क्लास लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपका ड्रीम है बाहर जाके पढ़ने का, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक सेट स्टैंडर्ड्स होती हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, राइट? तो पहला तो है कि लैंग्वेज ग्रास्प होना चाहिए। और अगर आप जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते हैं, अगर आप यूके में जाके पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कनाडा या यूएस में जाके पढ़ना चाहते हैं, हर एक कंट्री का एक फर्स्ट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होता है, इंग्लिश के अलावा भी, है ना? तो इंग्लिश तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके टॉप, उसके ऊपर जैसे आईएलटीएस का प्रिपरेशन है, वो ऐसी चीजें जो आपको कॉलेज के स्टार्टिंग से ही करना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी आए। उसके ऊपर अगर आप जर्मनी जाएंगे तो आपको जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चाहिए, तो आपको उसके लिए भी कोर्सेज पढ़ने होंगे। अगर आपको कनाडा में जाके पढ़ना है या फ्रांस जाके पढ़ना है तो उधर फ्रेंच की रिक्वायरमेंट बहुत होती है कुछ कुछ कॉलेजेस में। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लैंग्वेज है तो फॉरेन में पढ़ने का ही नहीं, पर जॉब करने का भी आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? तो ये जो दो चीजें हैं कि कॉलेज के स्टार्टिंग से ही आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पहले बढ़ाएं। और दूसरी बात है कि आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं बाहर, तो वो पूछते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है कॉलेज में पढ़ते हुए, अंडर ग्रेजुएट करते हुए, है ना? तो अगर आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज लेंगे, इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस पूरी करेंगे 3 महीने 6 महीने वर्चुअली व्हाइल यू आर स्टडीइंग इन कॉलेज, ये एक सेकंड एड ऑन हो जाता है आपका, राइट? और तीसरी चीज है कि आप कॉलेजेस एक्सप्लोर करिए पहले, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे अरे मेरे को हार्वर्ड में एडमिशन चाहिए, ये वाला जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन है उसमें एडमिशन चाहिए, राइट? बट ऐसे बहुत सारे अलग कंट्रीज हैं, बहुत सारे अलग कॉलेजेस हैं जहां पे आपको परफेक्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है, राइट? उन गिने चुने कॉलेजेस के पीछे ही मत भागिए, बहुत एक्सप्लोर करिए। मैं आपको ये 3 टिप्स दूंगा, राइट? पहले तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सेकेंड है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, आप एक्सप्लोर करिए बेस्ड ऑन आपके फर्दर स्टडीज। और तीसरी जो बात है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में जानिए पहले, राइट? और डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानिए। अगर आप बाहर जाके पढ़ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना पैसा, तो उसके बाद आपको कैसा वैल्यू मिलेगा वो आपको देखना बहुत जरूरी होता है, राइट? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सलोनी। अब हम कुशल भारद्वाज, आपको मैं माइक राइट दे रहा हूँ, प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए अपना। Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Sir, I want to know your life story from young age to. Oh, my life story is very very Yes, weird. sir. तो सर कुछ ऐसा आप बताइए कि मतलब सब स्टूडेंट्स जो आज जनरेशन है आज की, तो उसको कुछ एडवाइस मिल सके आपकी लाइफ स्टोरी से, तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। कुछ। देखिए, मैं इतना अभी क्या बोलते हैं, इतना तजुर्बा मुझे नहीं है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। जितना भी मैं एज में ओल्ड होता रहूँ, बस मैं 27 साल का हूँ अभी। तो एक दो ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, राइट? तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे ही मतलब ऐसे पाथ पे चले जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लें, राइट?
Yes. तो मैं पहले स्टार्टिंग से ही बहुत ही एग्रेसिव और रेबेलियस स्टूडेंट रहा हूँ कि मैं पेरेंट्स की बात नहीं मानता था, टीचर्स की बात नहीं मानता था। स्कूल में बहुत मानता था, बट कॉलेज में आके थोड़ा ऐसा कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे बाहर जाना है, ऐसी चीजें होने लग गई थी बहुत ज्यादा। तो एक एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरा तो एक तो इवनिंग कॉलेज था, तो 1:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक क्लासेस होती थी मेरी। तो सुबह का जो टाइम था वो मैं घर पे रह के नहीं बिताता था, राइट। तो सुबह का जो टाइम था वो मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता था, राइट। तो या तो मैं फोटोग्राफी क्लब में था, तो मैं फोटोग्राफी सीखने लग गया। मैंने डिजिटल मार्केटिंग, जो एड्स बनाते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, वो सीखने लग गया था। तो ये जो एक एक्सपीरियंस है कि अपने पास 24 घंटे होते हैं, चाहे हम मार्क जकरबर्ग हों, चाहे हम रिलायंस में मुकेश अंबानी हों, चाहे हम शाहरुख खान हों, एलोन मस्क। हम, हाँ जी, यस सर, एलोन मस्क सर, एलोन मस्क। हाँ, एलोन मस्क, कोई भी हो हम, चाहे इंडिया, मैं इंडियन एग्जांपल ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि हम इंडियंस हैं, कि चाहे यस सर। कोई भी हो, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हम असेंबली में कोई क्लर्क के काम में हो, हमारे पास, सबके पास 24 घंटे हैं, और उस 24 घंटे में हम क्या करते हैं उसके बेसिस पे हमारा लाइफ डिसाइड होता है ना। तो यस सर। अभी जैसे मैं अनस्कूल कंपनी को लॉन्च किया हमने 1.5 साल पहले, तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया जॉब थी जिससे मैं 12 लाख हर साल कमाता था। और अभी मैं अनस्कूल को बिल्ड किया है मैंने बॉटम से टॉप तक। तो पहले 3-4 महीने तो सैलरी नहीं होती थी, पहले 3-4 महीने तो 1-2 मील्स खा के गुजारा होता था, राइट। पर उस 24 घंटे में मैं 6 घंटे सोता था, और बाकी जो अपने 18 घंटे हैं उसमें हर एक टास्क में डिवाइड करता था कि 3 घंटे मैं बुक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे मैं एक्सरसाइज करूंगा और खेलने जाऊंगा, राइट। और बाकी जो घंटे बचे हैं 12 घंटे से 14 घंटे, उसमें मैं बिल्कुल काम करूंगा, कॉल्स होंगे मेरे, मीटिंग्स होंगे, राइट। तो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, अभी आपका अगर कॉलेज का टाइमिंग 8 आवर्स का है, आप सुबह 8 से 4 बजे तक कॉलेज में रहते हैं, आपके पास फिर भी 16 घंटे हैं, राइट। उसमें से अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आपके पास 8 आवर्स हैं। चलिए 4 घंटे हम असाइनमेंट्स में निकाल देते हैं, आपके पास फिर भी 4 या 3 या 4 घंटे हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। और अगर आप ये नहीं करेंगे अपने अगले 4 साल में, तो आगे बढ़कर ये कोप अप करना बहुत ही टफ हो जाएगा कुशल, राइट। तो जो लाइफ में जो भी सक्सेसफुल होते हैं, वो अपना जो 24 आवर्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, राइट। और ये बहुत इजी नहीं होता कुशल, राइट। अपना जो डेली का रूटीन है वो मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो लाइफ जीने की वजह ही नहीं है ना, राइट। ऐसे एग्जाम्स आते हैं, टेस्ट आते हैं, मैं भी बहुत घबरा जाता था, अरे यार टेस्ट आ रहे हैं, है ना। बट अभी जब मैं कंपनी चला रहा हूँ तो उसमें जब मेरे कस्टमर्स आके बोलते हैं, अरे ये आपका स्कोर है, हमें इतना पसंद आया आपका, वो मेरे लिए टेस्ट हो गया अभी, अब मैं उससे तो घबरा नहीं सकता, है ना। यस सर। तो जिस चीज से हम भागना चाहेंगे कॉलेज में, वो हमें 4 साल के बाद आके फिर से हॉन्ट करेगी, हमें फिर से परेशान करेगी, राइट। तो कॉलेज में जो भी चैलेंजेस हैं उसको आप फेस करिए। पहला तो मेरा ये सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं भी ऐसे चैलेंजेस से भाग रखा हूं, तो आप फेस करिए पहले तो वो चैलेंज। दूसरा, अपना 24 घंटे का जो टाइम है दिन का, उसको ऐसे मैनेज करिए जैसे कि कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर, बड़ा बिजनेसमैन मैनेज करता हो, राइट। सबके पास 24 घंटे हैं, सबको आधे घंटे से 45 मिनट तक का खाने का टाइम चाहिए होता है, सबको नहाना पड़ता है, सबको सांस लेना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग बैठे हैं भाई, सांस नहीं ले रहे हैं, काम कर रहे हैं 24 घंटे बैठ के, है ना। उनको भी 6 से 8 घंटे सोने का पड़ता है ना। तो कुछ चीजें हैं जो हमें लाइफ में बिल्कुल करनी चाहिए, राइट। चाहे कहीं से भी हो आप, चाहे किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से हो, जब तक आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तब तक आप कुछ भी बन सकते हैं लाइफ में, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, राइट। तो जो आपके पास पावर है उसको आप इस्तेमाल करिए। आप कॉलेज में हैं, आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्रोफेसर्स को तंग करिए क्वेश्चंस पूछ के, राइट। उनका जॉब है और उनके पास एक्सपीरियंस है, 15-20 साल वो सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाते गए हैं, तो उनको पता है कि मैं ऐसे सॉल्यूशन दूंगा स्टूडेंट्स को तो उनका फ्यूचर अच्छा होगा, राइट। और आगे बढ़कर डिसीजन आपका है, सजेशन देना प्रोफेसर्स का काम है, ओपिनियंस देना, आपको सही राह पे चलाना उनका काम है।
बट आप कौन सा राह चूज करते हैं, आप कौन से रोड को चूज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? राइट मैं सर। बस यही कहना चाहूंगा कुशल। आई होप मैंने आपका जो क्वेश्चन था उसको सही थैंक यू तरीके सर, थैंक यू। बहुत से और भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको प्रवीण कुमार, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। और प्रवीण कुमार अगर आप नहीं हैं तो मैं तंजीर आलम आपको माइक राइट दे रहा हूँ, प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए अपना। नेक्स्ट लीजिए सर, नेक्स्ट लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं। कमल कैन आस्क द क्वेश्चन। कनिका खंडेलवाल इज देयर। Okay, Kanika. Okay, I am unable to find. Give me a moment. Okay. Some technical error maybe. Yes, Kanika. Yeah, Kanika Khandelwal. You can ask your questions. 1 second, Kanika. सर आजकल मतलब हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं बट हमारा जो ध्यान है वो कंप्लीटली मोबाइल पर चला जाता है, तो हम वो कैसे हटा सकते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो पिछले 7-8 साल से मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ, और लकीली पिछले 1.5 साल में मेरे को भी इसका एक सॉल्यूशन पता लगा है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं कॉल जैसे आपके साथ जूम पे हूँ, ठीक है, अगर मैं अभी अपना व्हाट्सएप देखूंगा तो कम से कम 10 लोगों ने मैसेज किया होगा, कुछ 5-7 मेल्स आए होंगे, इंस्टाग्राम पे लाइक्स आए होंगे, है ना? तो सबके Yes, फोन में ये बजता रहता है, राइट? तो देखो हम हैं इंसान, राइट? और भगवान ने हमें, और जिसने भी हमें बनाया है, अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते, जिसने भी हमें बनाया है, yes उसने sir. हमें अपने चॉइसेस खुद लेने के, है ना, खुद अपने चॉइसेस खुद लेने के हमें एक Right, लिबर्टी sir. दी है, राइट? तो जो मोबाइल फोन है वो, अगर मैं जैसे मैंने फोन उठाया और स्क्रीन ऑन हो गया, राइट, इसका सेटिंग रहता है ना? हमारे पास, इंसानों के पास तो सेटिंग नहीं रहता कि भाई प्रतीक आए मेरे पास और बोला नारायणन बहुत बोल रहा है अभी, तो मैं म्यूट का बटन दबा दूं। Yes sir. ऐसा तो हो नहीं सकता। अब वो जूम कॉल पे म्यूट का बटन जरूर दबा सकते हैं, है ना? तो इसमें फोन में हमारे पास ऑप्शन रहता है, एक ऑप्शन रहता है सेटिंग्स में, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं ये यूज करता हूं बहुत। आप सेटिंग्स जाइए, Yes sir. आप सेटिंग्स जाएंगे तो एक सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है नोटिफिकेशंस का, है ना? Yes sir. ये कंपनीज हमें बताती नहीं है, मतलब बताएंगी, पर आपको यूज का इतना, आप शायद मेरा स्क्रीन देख ना पाए क्योंकि बहुत ब्राइट है अभी, शायद अभी देख पाए, Yes. राइट? नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस में आप जाएंगे तो ये पूछता है कि आपको किस ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए, है ना? तो जैसे मैं Yes. इंस्टाग्राम का बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं है जरूरत, और ये आ गया एयरटेल का बंद। आप देखेंगे बहुत सारे मेरे ऐप्स जो हैं उनके नोटिफिकेशंस बंद हैं, Yes sir. क्योंकि मेरे को यूज नहीं है इन ऐप्स का, और ये ऐप्स मेरे को बहुत तंग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि मैं दिन में 20 मिनट निकालता हूं, जब मैं सोने जा रहा होता हूँ, सोने से एक 1.5 घंटे पहले, डिनर करते हुए या डिनर के बाद 20 मिनट निकाला, इंस्टाग्राम पे गया, सारे नोटिफिकेशंस देखे, क्लियर किया और बाहर आ गया, राइट? और फोन का एक इस्तेमाल है कि कोई कांटेक्ट करना चाहता है आपको, है ना? अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी में है, बहुत जरूरत में है और आपको कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो आपको फोन कॉल करेगा और आपका फोन उस टाइम पे बजेगा, है ना? Yes sir. तो एक थियोरी है कि अभी हम दुनिया में ऑलवेज कनेक्टेड हैं। जैसे कि मैं अभी हैदराबाद में बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, और आप लोग नॉर्थ में, हर इंडिया के हर कोने से ज्वाइन किए हैं, राइट? और ये ऑलवेज कनेक्टेड का जो फियर रहता है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, उससे अपने लाइफ को कुछ फायदा नहीं होता, राइट?
तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप फोन के नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये एक रोबोट है, ये एक सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। और अब आप सोने जा रहे हैं और आपका फोन बजे जा रहा है तो एक ऑप्शन आता है डू नॉट डिस्टर्ब का, उसको आप अपने 10 बजे रात के लेकर सुबह 8 बजे तक ऑन कर दीजिए कि 10 से 8 बजे तक कोई भी नोटिफिकेशन मेरे को आएंगे ही नहीं। और अगर आप उसमें एक और ऑप्शन रहता है कि कोई इमरजेंसी का कॉल कर रहा है, 5 मिनट के अंदर किसी ने 3 बार कॉल किया तो इमरजेंसी तो होगी, है ना, उस टाइम पे तीसरी बारी में आपका फोन खुद ही रिंग होने लगता है, चाहे वो साइलेंट में हो चाहे वो वाइब्रेशन में हो, राइट। तो ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर करिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। और मोबाइल फोन देखिए बहुत पावरफुल है, मैं अभी बैठे बैठे अपने पेरेंट्स के साथ जो ओमान में है उनसे बात कर सकता हूँ बिना ट्रैवल किए, बिना कुछ करे। तो ये जो मोबाइल है वो बहुत पावरफुल टूल है, आप उसको उसी तरीके से यूज करिए। जैसे कि आप सोचते होंगे अरे मैं तो, जैसे नारायणन तो बिजनेसमैन है, पढ़ते नहीं होंगे। देखिए मेरा जो कंपनी का ऐप है वो बिल्कुल टॉप पे है ना, बिल्कुल टॉप पे है। और अगर आप जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी देखिए ये है कोर्सेरा का, देखिए ये देखिए यूडमी का ऐप है, वेदांतु का ऐप है, अनअकैडमी का ऐप है, अपग्रेड का ऐप है। क्योंकि लर्निंग जो है वो कर सकता हूँ मैं अपने फोन से, है ना। तो मैंने अपने फोन को अपने तरीके से थोड़ा यूज करना देखा है। ओके सर। हाँ जी, तो हम उसी हिसाब से अगर आप अपना फोन Mr. Narayanan may have lost the connection, I think. Looks like it, sir. Yeah, Prateek ji. Yeah, no problem. So, like I would think कि अगर नारायण अगले 2 मिनट में आ जाते हैं तब तक हम रैप अप कर लेते हैं। तो फॉर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं कुछ जेनरिक से, मैं 1-2 क्वेश्चंस चैट से ले लेता हूँ। चैट में कुछ क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो चैट में हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो दैट वाज मोटिवेशन फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, राइट। तो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि देखिए मोटिवेशन हम सभी के पास कुछ ना कुछ एक लाइफ में रहती है, तभी वी आर सर्वाइविंग, तभी वी आर फाइटिंग एवरी डे, राइट। एवरी डे हम कुछ ना कुछ करते हैं, हमारा शेड्यूल होता है, हम स्कूल जा रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन ऑलरेडी। अगर हम एक्स्ट्रा मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, मैं जाता हूँ, नारायण जाते हैं, कासवान जी जाते हैं, आपसे बात करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, उस मोटिवेशन में हम एड ऑन तो कर सकते हैं, पर हम आपको कोई 10 नई मोटिवेशन नहीं दे सकते, बिकॉज आपकी लाइफ में जो मोटिवेशन होगी वही आपके काम आएगी। हम अगर कुछ आपको अलग से दिखाएंगे तो वो कुछ अलग आपके पास आधे घंटे 1 दिन हफ्ता भर काम करेगा, उसके बाद आपको खुद ही अपनी मोटिवेशन पे काम करना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा कुछ एक जेनरिक क्वेश्चन, या Narayan is back. नारायण इज बैक, आई गेस। हाँ, देखिए कैसे क्वेश्चन पे वाईफाई गया कि फोन का इस्तेमाल कैसे नहीं करना है भाई, बस वाईफाई ऑफ कर दीजिए आप अपना। आई थिंक सबका लाइफ थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। मृदुल प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मृदुल, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एग्रीकल्चर 3rd सेम का स्टूडेंट हूँ संस्कृति यूनिवर्सिटी से। बहुत बढ़िया। और मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा जी। आई थिंक मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है, बट मैं पर डे 6 to 8 आवर्स स्टडी करता हूँ, लेकिन 3 आवर्स के बाद मेरा कंसंट्रेट अपने आप ही हटने लगता है। सर उसका रीजन क्या है? देखिए मृदुल, इसका रीजन ये है कि जब आप कॉलेज में आपके प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, आपका एक क्लास कितना लंबा होता है? सर 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का होता है। आपने कभी क्वेश्चन किया है कि भाई 45 मिनट का ही क्लास क्यों होता है? सर इस सब्जेक्ट में तो मैंने नहीं क्वेश्चन किया सर से कभी भी। हाँ, ठीक, 45 मिनट्स। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, और हमारे एज ग्रुप में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना 18 से 24, 18 से 25, एक रिसर्च है कि
45 मिनट के बाद हमारा जो कंसंट्रेशन है वो 100% नहीं रहता। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप 45 मिनट एक टॉपिक उठाइए और उसको पढ़िए, फिर आप एक 5 to 7 मिनट्स का वॉक लेके आइए या फिर ब्रेक लीजिए। ठीक है, 5 से 7 मिनट एक गिलास पानी पीजिए, या फिर थोड़ा अपना डेस्क ठीक करिए, या फिर जहां पे आप पढ़ रहे हैं उस पोजीशन को चेंज करिए, और फिर उस 7 से 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप फिर से 45 मिनट्स का एक पूरा कंप्लीट सेटअप करिए। ठीक है, अगर आप 6 से 8 घंटे डायरेक्टली फुल ऑन पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम 3 घंटे का जो आप नॉलेज सोक कर रहे हैं वो शायद आपको लॉन्ग टर्म नहीं यूज होगा, राइट? आपके वो मेमोरी में नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म। अगर आप 45 मिनट्स का सेटअप, 15 मिनट्स ब्रेक, देन 45 मिनट्स, देन 15 मिनट्स का, देन आप अगर 6 to 8 आवर्स बैठेंगे तो बहुत ही यूजफुल रहेगा, राइट? क्योंकि जब मैं भी अभी ऑफिस में हूँ, ठीक है, जैसे ही 45 मिनट्स होगा मेरा जो MI का बैंड है वो वाइब्रेट करेगा, बोलेगा अरे यार आप 45 मिनट से एक ही जगह पे बैठे हो, जरा चल के आओ। ठीक है, तो मैं उठूंगा, कंसंट्रेशन अपना वापस गेन करूंगा 7 से 10 मिनट या 15 मिनट के बीच में, आई विल कम बैक एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन माय डेली रूटीन। ठीक है, तो मृदुल अगर आप, पहले तो बधाइयां हो कि आप IAS के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी खबर है, और अगर आप ये यूज करेंगे तो आप 6 क्या, आप 10 घंटे या 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 45 मिनट्स का स्टडी और 15 मिनट्स का ब्रेक करेंगे तो इजीली आपको ज्यादा नॉलेज गेन होगा हर दिन, और आप 6 को अपना 8 घंटे भी कर सकते हैं। ठीक है, और IAS की तैयारी तो बहुत ही टफ रहती है, आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना आपका पर्सपेक्टिव और एग्जाम क्लियर करने का प्रॉस्पेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बस यही सजेशन है मेरे को आपके लिए, आप इसको इस्तेमाल करिए, और अगर आपको और डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे बाद में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अख्तर अली प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और मैं इसके बाद सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको दे सकता हूं, आप उस पे मेरे को रीच आउट करिए, या फिर लिंक्डइन पे भी आप रीच कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, अख्तर अली आप अगर आप हेलो सर। प्लीज पूछिए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर मैं गोरखपुर से हूँ, अच्छा, और मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी MSc बायोटेक का फर्स्ट ईयर, MSc बायोटेक का मतलब स्टूडेंट हूँ। बहुत बढ़िया। सर आपसे मतलब क्वेश्चन यही है कि जैसे MSc बायोटेक में ये बनाना कुछ जैसे जो भी है स्किल्स मतलब डेवलप करने के लिए, क्योंकि MSc बायोटेक उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिट होता है जो कोई भी किसी भी कंडीशन में प्रोफेसर, जैसे आप बताएं कि प्रोफेसर से क्वेश्चन करना, या फिर जो भी सारे मन में जो भी डर होता है वो निकालना, ये इसका बेसिक चीजें क्या है, कैसे मतलब ये दूर हो सकता है? आप अपना क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। मैं समझाता हूं। सर मेरा क्वेश्चन है, अख्तर वांट्स टू आस्क कि जो हिचक है, अच्छा, वो हाउ टू डू रिमूव दैट। अच्छा ठीक है, देखिए थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। देखिए, जब हम कॉलेज में होते हैं, पहले तो आप MSc पढ़ रहे हैं, बहुत ही खूब बात है। हम प्रोफेसर्स को हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम इस साइड है टेबल के और प्रोफेसर उस साइड है टेबल के, राइट? बट अगर मैं कहूँ तो प्रोफेसर्स मतलब हमें वो फ्रेंड्स जैसा देखते हैं, अगर हम उनको रिस्पेक्ट करके, मतलब प्रोफेसर्स और टीचर्स का काम ही है, वो इस इंडस्ट्री में है, क्योंकि मैं मतलब क्योंकि अब मैं इतना बड़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहता, पर ये रियलिटी है कि टीचर्स और प्रोफेसर्स का जो जॉब है वो मतलब बहुत ही डिवाइन जॉब है, बहुत ही बहुत सारे लोग इस जॉब में नहीं आते, क्योंकि एक तो पे ग्रेड कम रहता है, दूसरा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। पहले तो कॉलेज स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले आओ, फिर 8 घंटे, उसके बाद 1 या 2 ब्रेक्स मिलते हैं, फिर 8 घंटे के बाद असाइनमेंट्स, फिर एग्जाम्स, फिर इन्विजिलेशन, फिर क्या कुछ नहीं। तो इस प्रोफेसर और टीचर के जॉब रोल में जो भी ह्यूमन आता है, चाहे 1 साल एक्सपीरियंस हो चाहे 15 साल हो, वो सिर्फ एक मोटिव होता है उनके गोल का कि मैं अपने लाइफ टाइम में कितने भी स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकूं,
कितने स्टूडेंट्स के लाइफ को मैं ट्रैक पे ला सकूं, है ना। उनका वो जॉब है, चाहे वो पीटी के प्रोफेसर हो, चाहे वो म्यूजिक के प्रोफेसर हो, चाहे वो बायोटेक के प्रोफेसर हो, उनका एक ही मकसद रहता है लाइफ में कि मैं स्टूडेंट्स को अच्छे करियर में कैसे लेके जा सकूं, राइट। क्योंकि अभी भी जब मैं कॉलेज से निकल गया हूँ, 5 साल हो गए मेरे को, स्कूल से निकल गया हूँ 8 साल हो गए हैं, अपने टीचर्स को मैं इतना थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उनके सजेशंस के बिना, उनके डांट के बिना मैं अभी जो हूँ वो नहीं बन सकता, राइट। तो मुझे आपसे अक्सर एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्रोफेसर्स को अपना फ्रेंड्स मानिए, और एक छोटी सी लकीर होती है फ्रेंड्स और टीचर्स के बीच में कि हम रिस्पेक्ट करें उनको, राइट। मैंने अभी बहुत बार सुना है, अभी बहुत सारे प्रोफेसर्स को पिछले 8 महीने में तकलीफ हुई है जूम कॉल्स में पढ़ाने की, राइट। उनको जूम कॉल में पढ़ाने का एक्स्ट्रा तो नहीं मिल रहा ना, बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि जूम कॉल पे आ गए, प्रोफेसर को म्यूट कर दिया या फिर गाने बनाना शुरू कर दिया, राइट। अरे प्रोफेसर सीख रहे हैं, एक 21st सेंचुरी का टेक्नोलॉजी सीख के आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है आप तंग करिए उनको, बट क्वेश्चंस पूछ के, राइट। उनको डिफिकल्ट स्पॉट में रखिए क्लास में, ऐसा नहीं कि हल्ला गुल्ला मचा के, बट उनसे क्वेश्चंस पूछिए, सिर्फ बायोटेक के बारे में नहीं। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं वैसे आप प्रोफेसर से पूछिए कि मुझे हिचक है आपसे क्वेश्चन पूछने में, मुझे डर सा लगता है, राइट। अगर आप उनको अपने फ्रेंड जैसा मानेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई प्रोफेसर आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि उनके लाइफ का एक ही मकसद है कि आपको वो बढ़िया से बढ़िया सजेशन दें, राइट। तो मैं आपसे यही, मतलब मेरी गुजारिश सी होगी, एक रिक्वेस्ट सी होगी थी कि आप कॉलेज के बाहर कोई भी आपको सजेशन देगा ना, तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा बैक कि भाई पैसे दे दो मेरे को, या फिर मेरे लिए एक और हेल्प करो तो जाके मैं आपकी मदद करूंगा। बट प्रोफेसर मतलब भगवान के समान होते हैं। मैं ये बात इसीलिए नहीं कह रहा थी कि क्योंकि प्रोफेसर या कॉलेज की फैकल्टी में यहाँ पे प्रेजेंट है। आप मेरा कोई भी सेशन देखिए, मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सेशन दिया हूँ, अभी सुबह हमने SRM यूनिवर्सिटी में सेशन दिया है। मैं उधर यही बोलता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेसर्स हैं जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। और आप बस जाके क्वेश्चन पूछिए, आपका एक मकसद रहना चाहिए कि इस कॉल के बाद आप कोई भी डाउट हो जाके पूछिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा, चाहे वो प्रोफेसर को पढ़ के वापस आना पड़े। मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर्स करते हैं ऐसा, राइट। आप उनको टफ स्पॉट में डालिए तो, राइट। तो मतलब नर्वस ना होइए। जैसे आपने मुझसे पूछा क्वेश्चन, आप तो मुझे पिछले आधे या 1 घंटे से जान रहे हैं, आपने मुझसे बेझिझक क्वेश्चन पूछा। प्रोफेसर्स तो आपके साथ डे इन एंड डे आउट कॉलेज में रहते हैं, राइट। अब बोलिए सर मैं कैंटीन चलते हैं, लंच करते हैं सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, मुझे बहुत डाउट है, राइट। बिल्कुल फ्रेंड्स जैसा बात करिए, रेस्पेक्ट को रेस्पेक्ट ऐसा दीजिए कि फेक रेस्पेक्ट ना हो, राइट। दिल से रेस्पेक्ट आए तो प्रोफेसर आपको बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं, यही गुजारिश है मेरी। और अभी जितना हमारे पास समय है उसके लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी दे देता हूं, आप उसमें मेरे को कोई भी क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। और मेरा जो लिंक्डइन है उसमें भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो अपार्ट फ्रॉम बिजनेसमैन मेरा जो डे टू डे वर्क है, मैं पिछले 2-2.5 साल से सॉफ्ट स्किल्स के कोर्स लेता हूँ और स्टूडेंट्स को इंटरव्यू रेडी, और ऐसे जैसे आपने क्वेश्चंस पूछे कि लाइफ में गोल कैसे सेट करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, पिछले 2 साल से मैंने कम से कम 15,000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाया है ऐसा। और अनस्कूल में भी मेरा एक कोर्स है सॉफ्ट स्किल्स का, राइट। और बस एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो हमारा पार्टनरशिप है संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ, वो ऐसा नहीं है कि कि बस कोर्स लीजिए और बस ऐसा ही, राइट। हमारा ये एक इंटेंशन है कि आप कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ें और जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो भी पढ़ें। कि जो अगर आप संस्कृति यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं संस्कृति यूनिवर्सिटी अभी, तो आपको ऑफर मिलेगा। अब अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 4,000, 6,000, 10,000, 12,000 के जो कोर्सेज मिल रहे हैं वो आपको 25 to 30% ऑफ में मिलेंगे, राइट।
कहीं भी बिटवीन 2,500 टू 4,000 रुपीज में आपको कोर्सेज मिलेंगे, जो अगर वेबसाइट में 8,000 या 12,000 के हैं, ठीक है। तो आप इस पार्टनरशिप का आप इस्तेमाल करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रतीक या फिर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और ये सेशन क्लोज करने के लिए पहले तो मैं संस्कृति यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज को और प्रतीक और सक्षम जो एडुराइट से हैं उनको बहुत ही थैंक्स देना चाहूँगा। और जिस भी स्टूडेंट ने आज ज्वाइन किया टाइम निकालने के लिए बहुत ही आपको बहुत सारा थैंक्स। मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं मुझे हिंदी में इतना टाइम बात करते हुए, तो आपने मुझे एक टफ स्पॉट पे डाला, तो उसके लिए भी शुक्रिया कहना चाहूँगा। और कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके साथ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा @chalkmeout है, उस पर आप मैसेज करिए और मैं आपको जल्द से जल्द मदद करूँगा। Prateek, over to you. Thank you so much for all the efforts, and thank you for having so many students on the call as well. No problem. Thank you so much, Narayan. It was actually a really wonderful session. I got to learn a lot from you as well, and I'm sure the students learned a lot as well. So all the students, आपका भी we would like to thank you a lot यहाँ पे आने के लिए, इतने सारे questions पूछने के लिए, and it was really wonderful देखने के लिए कि सारे स्टूडेंट्स इतने एक्साइटेड थे, इतने enthusiastic थे कि वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। I saw a lot of students asking questions in the chat, raising hands, so that was really wonderful. Thank you, Suresh sir. अब अच्छा, लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वन मोर थिंग फ्रॉम आवर साइड, कि अभी जो हमने बताया, नारायण जी ने आपको इतना सारा समझाया कि जो कोर्सेज हमारे पास हैं जिसके थ्रू आप अपस्किल कर सकते हैं अनस्कूल पे जाके, तो उन कोर्सेज को आप अब एनरोल कैसे करेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट मिलेगी एक unschool.in, राइट। आप उस पर जाके कोर्सेज देख सकते हैं। अब अगर आपको एनरोल करना है तो आप कासवान सर के पास जा सकते हैं ऑफिस में, या अपने किसी भी फैकल्टी के पास, कासवान सर आपको समझा देंगे इसके बारे में, और आप अपना नाम और कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं वो आप वहाँ लिखवा दीजिए, राइट। उसके बाद आपको हम रीच आउट करेंगे अनस्कूल टीम की तरफ से, फिर आपका हम वहाँ से कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे नारायण जी ने आपको समझाया कि डिस्काउंट्स भी हैं बहुत सारे संस्कृति यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सारे आपको डिस्काउंट्स हम ईमेल के थ्रू या फैकल्टीज के थ्रू आपको सारे समझाएंगे, एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन टेक इट फर्दर। या so thank you so much Kaswan sir, thank you so much everyone present here. Thank you so much Mr. Narayanan for such a wonderful Hindi session to our हिंदी भाषी स्टूडेंट्स एज वेल। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ प्रतीक खरे जी का कि ये सेशन लेके आए, क्योंकि अभी थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए टफ टाइम है। पिछले 9-10 महीने से दे आर स्टडिंग रिमोटली, एंड ये सेकंड सेमेस्टर है कि पिछले जून में भी और दिसंबर में, अब 9 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है मेरे सभी बच्चों का। तो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एवरीवन, एवरी स्टूडेंट्स, we wish luck. Thank you Narayan ji, thank you Prateek Khare. Thank you so much sir. All the best to all the students for the exams, and thank you so much sir. Thank you once again, one and all. Thank you.